Today we are going to start with another topic which is relevant for your prelims examination, and it was there in the news as well. Today we are going to start with criminal justice because this topic was there in the news. Criminal justice. Now, with why this topic is important, let me tell you that from 1st July 2024, two important laws has been implemented, that is BNS. Okay, Bharatiya Nyaya Samhita, and another law is BNSS. क्लियर? तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, दिस इज लाइक IPC and this is like CRPC. Okay, so these two laws are very important for this year examination, so we'll try to understand each and everything. Now, first of all, when we talk about criminal justice, that is related to the crime and offense, there is a difference in crime as well as offense. Crime और offense में एक difference होता है. There is a difference between crime and offense. See, all offenses are crime. ये हमेशा याद रखना. All offenses are crime, but not all crimes are offenses under Indian law. Okay. All offenses are crimes, but all crimes are not offenses under Indian law. तो अब सबसे पहली चीज ये आती है सामने कि ऑफेंस का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंस? ऑफेंस सिंपल लैंग्वेज में अगर समझोगे, सो दैट मीन्स इट इज द वॉयलेशन ऑफ लॉ. इट इज द वॉयलेशन ऑफ लॉ, है ना? वॉयलेशन ऑफ लॉ दैट आर डिफाइंड, क्लियर, और पनिशेबल अंडर स्पेसिफिक लॉज. ऑफेंस वो है जब आपने लॉ वॉलेट किया एंड दैट इज डिफाइंड और उसका इट इज पनिशेबल अंडर स्पेसिफिक लॉज. क्लियर? व्हाइल क्राइम्स हैज ब्रॉडर मीनिंग. क्लियर? क्राइम का मतलब होता है ब्रॉडर रॉन्गफुल एक्ट्स. क्राइम का मतलब क्या होता है? इट मींस ब्रॉडर रॉन्गफुल एक्ट्स. ब्रॉडर wrongful acts that may or may not be defined and punishable under India. डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है अंडर इंडियन लॉ. जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मैरिटल रेप इज अ क्राइम, इट इज नॉट एन ऑफेंस. क्लियर? ये याद रखिएगा एग्जाम्पल, क्योंकि इस पे काफी सारी न्यूज भी आई है. मैरिटल रेप, so they can ask statement that marital rape is an offense. So that is wrong. Marital rape is a crime and not an offense. Not an offense. Okay. This much is clear to all of you? Understood what is the difference between crime and offense? Okay. First of all, now we are going to discuss. So I hope everyone has noted down. Okay. So these are some basic things with respect to crime and offense. Now I would like to show you one chart. You can see here. Now see this chart of criminal justice. Now this table is going to give you the holistic information about criminal law and procedure. Police, prosecutors, courts, prisons, everything. Okay, जितनी भी चीजें थी सब मैंने एक चार्ट में इसीलिए कर दी है so that you can understand. Okay. Now with respect to criminal law and procedure, first of all, law and order, it comes under which list? It comes, remember this thing, criminal law and procedure under concurrent list. पुलिस आती है स्टेट लिस्ट में. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना? दैट इज रॉन्ग. क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, it comes under concurrent list. That means state can also make laws as well as center also can make. That is why, as you can see here, भारतीय न्याय संहिता, है ना, BNS जो आया, CRPC को हटा के BNSS आया, IEA को हटा के PLA आया. ओके, सो अभी मैं दिल्ली पुलिस की बात करूंगा. पहले ये समझ लीजिए सभी लोग, BNS, BNSS and BNA. 3 new laws came and they have replaced old British laws.
नाउ पुलिस की अगर हम बात करें, इट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट. पुलिस का काम क्या होता है? टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर. Now, where this term or where this is defined that police has to maintain the public order, that is mentioned in Police Act of 1881. Okay, which also came during the time period of British. Now, police comes under state list, so different states having different manuals, different laws, different procedures. Now, with respect to prosecutors, now prosecutors, अब एक चीज याद रखिएगा, this talks about PLSS, CRPC. So it represents state at criminal trial, है ना. प्रोसिक्यूटर्स यहाँ पे याद रखिएगा, रिप्रेजेंट स्टेट एट क्रिमिनल ट्रायल. कोर्ट, ये सब स्टेक होल्डर हैं, ये याद रखिएगा. अभी हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे. देन कोर्ट्स की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सेशन कोर्ट जो होती है जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज होता है या सेशन जज, दैट डील्स विद क्रिमिनल, है ना, दैट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल कोर्ट. देन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके नीचे आता है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास जो PCS जे के थ्रू फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, देन सेकंड क्लास, एंड देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आता है. सो लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अवॉर्डिंग द पनिशमेंट, है ना. तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उतनी ज्यादा याद रखिएगा, ही कैन नॉट डिसाइड द हाई क्वांटम ऑफ पनिश. देन प्रिजन्स की अगर हम बात करें, प्रिजन्स कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, and for prisons there is an act called as Prison Act 1884. Then transfer of prisoner act is given in 1950. like अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था लॉरेंस बिश्नोई के बारे. तो लॉरेंस बिश्नोई जो कि सिद्धू मूसेवाला केस में भी है, सलमान खान के भी पीछे पड़ा हुआ, ऐसा कहा जा रहा है, उसको काफी सारी जेलों से ट्रांसफर किया. सो ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट कम्स अंडर 1950. Then Repatriation of Prisoners Act 2003 and then Model Prison Act 2023. अब ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है because this comes under recent, that is current affairs. Correct. Okay. Model Prisons Act. Okay. तो ये जितने भी चीजें अभी हमने देखी, all these are stakeholders. And don't worry, the notes have been shared. कल के नोट्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं, है ना, और ये वाले नोट्स भी आपको शेयर कर दिए हैं. डोंट वरी. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल जस्टिस. ना जो अगला स्टेप है जो हमें समझना है फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस. एज यू कैन सी हियर, अब एक चीज याद रखिए, देयर आर 6 type of offenses, or you can say 3 groups. One is bailable and non-bailable. Another is categorical, or you can say cognizable or non-cognizable. Third होता है compoundable and non-compound. अगर हम bailable and non-bailable offense की बात करें, bailable offense में bail as a right है, और bail उन्हीं cases में मिलती है जो less serious offense. Clear? So less serious offenses and bail can be granted by the court. ये याद रखिएगा, bail कौन ग्रांट करता है? It can be granted by the court and the police. अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेल का, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये याद रखिएगा. बेलेबल जो ऑफेंस होंगे वहां पर बेल कोर्ट दे सकती है और पुलिस दे सकती है, और बेल डिफाइन नहीं किया गया. नॉन बेलेबल क्या है? नॉट बेलेबल डिस्क्रिशनरी बेल, जिसमें बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें बेल नहीं मिलती, और दीज कैन बी कॉल्ड एज नो सीरियस ऑफेंसेस. एट अगर बेल दी भी गई है, so it can only be granted by the court, not by the police. This much is clear to all of you. Understood what is bailable and non-bailable? Okay. Another important thing is cognizable and non-cognizable. अगर हम cognizable offense की बात करें and non-cognizable की बात, cognizable वो offense होते हैं जहां पर बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है. समझ में आ रहा है? इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट की परमिशन के बजाय भी की जा सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस. क्लियर? और बट कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR तुरंत रजिस्टर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा. अगर मान लीजिए पुलिस ने FIR रजिस्टर कर ली है, तो अरेस्ट वो कर सकते हैं बिना वारंट के. वो ये कह सकते हैं कि आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है.
इन्वेस्टिगेशन कैन बिगिन विदाउट कोर्ट परमिशन ऑल्सो। नॉन कॉग्निजेबल कौन से होते हैं? जहां पर वारंट के थ्रू ही अरेस्ट किया जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोगों के घर पे अगर अरेस्ट वारंट वो मांगते हैं कि वारंट लाओ, है ना, तो वो नॉन कॉग्निजेबल। और इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं कर सकते, नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट कोर्ट परमिशन। क्लियर? इसमें डायरेक्ट एफआईआर नहीं की जाती है। क्लियर? कंप्लेन फॉरवर्डेड टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो नॉन कॉग्निजेबल में याद रखिएगा, बिना कोर्ट की परमिशन के आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज भी आई हुई है जहां पर इन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। दामिनी, ओके, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस कर लीजिए, फिर मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो जब हम बात करते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल वारंट, है ना, इन ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा, जब भी हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करेंगे वहां पर हमेशा इन्वेस्टिगेशन बिना कोड ऑफेंस के होगा। समझ में आ रहा है? बिना कोड ऑफेंस के होगा ही हो। जो ये एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, एफआईआर का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, ये याद रखिए। एफआईआर का याद रखिए कि कॉन्सेप्ट कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये चाहे तो लिख लीजिएगा, एफआईआर इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। ओके, यू कैन राइट डाउन, एफआईआर इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। इसका मतलब ये नहीं कि आप एफआईआर को लिख दें कि एफआईआर इज डिफाइंड, नो। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना समझ में आया सभी को? ओके, ये याद रखिएगा। ओके, अब चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंस, मर्डर कर दिया, अब वहां पर वारंट लेने का हम टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, है ना। रेप कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किडनैपिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, समझ में आ रहा है? देन उसके बाद रॉबरी कॉग्निजेबल है, टाउरी डेथ कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्लियर दामिनी? अब समझ में आया आपको? अगर हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या क्या आ सकते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल अब्यूजिंग ईच अदर, है ना, minor scuffles without injuries, intimidation, all these things comes under non-cognizable offense. Another category is compoundable and non-compound. Compoundable offense कौन से होते हैं? Which affect individuals. Clear? मान लो it can be settled mutually between the parties. समझ में आ रहा है? मान लो दो लोगों में झगड़ा, सेटल कर रहा है, जमीन के लिए लड़ाई हो गई, म्यूचुअली सेटल कर सकते हैं पार्टीज आप। कभी कभी कोर्ट की परमिशन भी लगती है सेटल करने, है ना। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? विच अफेक्ट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड इट कैन नॉट बी सेटल। समझ में आ रहा है? तो जब डाइवोर्स हो जाता है दैट बिकम्स नॉन कंपाउंडेबल। क्लियर एवरीवन? क्योंकि उसमें सेटल नहीं होता हस्बैंड और वाइफ के बीच में। क्लियर? कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल समझ में आया सभी को? ओके, so these are some different types of offenses which you should know. Clear? These are some basic things. अब अगर हम बात करें तो मैं एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं, विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ अ क्राइम, है ना। क्राइम की जर्नी कैसे शुरू होती, कैसे अरेस्ट किया जाता है, पूरा प्रोसीजर आपको मैं चार्ट के फॉर्म में शो कर दे। ओके, नाउ एज यू कैन सी योर जर्नी ऑफ अ क्राइम। ओके, so this is very important, as you can see here. So this is going to help you, okay, to so that you can understand each and every procedure. Now, तो सबसे पहली जो चीज होती है रिपोर्टिंग, है ना, कि क्राइम जर्नी ऑफ अ क्राइम प्रोसीजर कैसा होता है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है, ट्रायल होते हैं, वो पूरा यहाँ पर आपका लिए लिखा ना। Now as you can see here, first of all, reporting regarding crime, you can report to police or magistrate. Then investigation takes place. Investigation कैसे होता है? Through witness, evidence, forensics, through all these things, है ना। अब ट्रायल होता है। If the you can say convicted person or acquitted, if it is not guilty, तो वहां पर क्लोजर रिपोर्ट आ जाएगी। If
द पर्सन इज कन्विक्टेड और गिल्टी, ओके, देन सेंटेंसिंग दिया जाता है। सेंटेंसिंग कैसी होती है? इट कैन बी डेथ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हीनियस क्राइम, जेल, इट कैन बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, 14 टेन्योर, लाइफ टाइम इन सम केसेस, देन फाइन लगाए। क्लियर? इस तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एक चीज याद रखिएगा, एफआईआर को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, अभी हमें पढ़ा भी था। क्लियर? अरेस्ट कब किया जाता है? अरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट का मतलब होता है जब पर्सन को लीगल कस्टडी में रखा जाता है। और अरेस्ट कौन करता है? अरेस्ट हमेशा पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, ताकि वो इंसान भाग ना सके और इन्वेस्टिगेशन की जा सके। समझ में आ रहा है ना? अभी जैसे एक बहुत ही रीसेंट केस आया, इंडिया गॉट लेटेक, जहां पर 3 कॉमेडियंस, तो उनके शो को बंद किया गया और उनको समन किया गया, है ना, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई, फिर कोर्ट गए, वो कोर्ट ने समन किया। क्लियर? तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उनसे ये भी कहा गया कि आपका पासपोर्ट हमारे पास रहेगा, पुलिस ने कहा, ताकि आप कहीं बाहर ना जा सके, है ना, आप भागे ना। तो इसीलिए अरेस्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, ताकि वो लोग एस्केप ना कर सके और इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। अब अरेस्ट और कस्टडी में डिफरेंस क्या है ना? अब कस्टडी क्या होती है? दिस इज द कस्टडी इज द एक्ट ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन बाय लीगल अथॉरिटीज। ओके, अरेस्ट इज जस्ट द इनिशियल, यू कैन से, एक्शन दैट लीड्स टू कस्टडी। अरेस्ट से शुरुआत होती है कि अरेस्ट किया गया है, जब धीरे धीरे उसके लिए एविडेंस मिलने लगते हैं, देन वो इंसान कस्टडी में रखा जाता है ना। एक और टर्म होता है रिमांड। रिमांड का मतलब क्या होता है? सेंडिंग एन एक्यूज पर्सन टू द जुडिशियल कस्टडी। जब कोई इंसान, जब एक्यूज पर्सन को जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल, है ना, और पुलिस कस्टडी आफ्टर दी अरेस्ट, जब उसको जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, है ना, तब उसको हम बोलते हैं रिमांड। क्लियर? रिमांड का मतलब है कि जब तक, याद रखिएगा, हम ट्रायल का अवेट कर रहे हैं। क्लियर? तो इन्वेस्टिगेशन अभी और चल रही है, और ये कौन, इसका ऑर्डर कौन देता है? इसका ऑर्डर देता है मैजिस्ट्रेट। क्लियर? दैट रिमांड लीड्स टू कस्टडी ऑल्सो। क्लियर? रिमांड से भी इंसान कस्टडी में जा सकता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल जस्टिस। नाउ अब अगर हम बात करते हैं समन की, समन बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है, और इसको कोर्ट और या मैजिस्ट्रेट ही इशू करता है, लाइक अरेस्ट के लिए, सर्च के लिए, सीजर के लिए। नाउ एक्यूज्ड अरेस्टेड, एक बार जब एक्यूज अरेस्ट हो जाता है, वारंट के या बिना वारंट के, दैट एक्यूज्ड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स। तो एक्यूज पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने लाना है विद इन 24 आवर्स। क्लियर? अगर हमें लगता है कि इस इंसान को रखना है कस्टडी में, तो कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, कस्टडी रिक्वेस्टेड इफ फर्दर नीडेड। कस्टडी 2 तरह की होती है, इट कैन बी पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी शॉर्टर होती है, इट इज अंडर डायरेक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल कस्टडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? यहां पर इंटरोगेट करने के लिए पुलिस को किसकी जरूरत पड़ती है? कोर्ट के परमिशन की जरूरत पड़ती है। पुलिस नीड कोर्ट परमिशन टू इंटरोगेट। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस एंड जुडिशियल कस्टडी। अब प्ली बार्गेनिंग का एक कॉन्सेप्ट है। प्ली बार्गेनिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में, है ना। अब समझिएगा प्ली बार्गेनिंग है क्या। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। नाउ दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 2005। यहां पर जो डिफेंडेंट होगा या एक्यूज्ड होगा, he agrees to plead guilty, है ना, in exchange for concession from the prosecutor or court. क्लियर? तो याद रखिएगा, प्ली बार्गेनिंग वहां कहां पर अप्लाई नहीं होगी? प्ली बार्गेनिंग, याद रखिएगा, इट डज नॉट अप्लाई टू दी ऑफेंसेस लीडिंग टू 7+ years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर 7 साल से ज्यादा की जेल मिली है, सजा मिली है, तो उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। क्लियर? नाउ इट डज नॉट अप्लाई टू दी ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। अगर रेप का केस है तो वहां पर प्ली बार्गेनिंग नहीं है। क्लियर? बिकॉज
दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट दी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सोसाइटी। क्लियर? तो याद रखिएगा, प्ली बार्गेनिंग छोटे मोटे केसेस में ही मिलती है। अगर 7 साल से कम की सजा है, विमेन या चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम नहीं किया है, इन सब केसेस में आप प्ली बार्गेनिंग मिलती है। बिकॉज ये इसलिए होता है बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट दी सोसाइटी। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना सभी को समझ में आया बेसिक्स? ओके, कुछ चीजें समझिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हेन वी से दीज क्रिमिनल जस्टिस थिंग्स, है ना, जब हम क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं, नाउ विद रेस्पेक्ट टू क्रिमिनल जस्टिस, नाउ टेल मी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बताएगा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू क्रिमिनल जस्टिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? और जितने लोग क्लास मिस कर रहे हैं, मैं बता दूं, ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन, बेसिक थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके पुलिस लॉज, ये सारी चीजें आप करंट के साथ कनेक्ट कर रहे हो। दैट इज गोइंग टू हेल्प इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है? तो जितने लोग मिस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हैं। क्लियर? तो मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ, जब भी आप रिकॉर्डिंग देखें तो आप क्लास हो सके तो लाइव क्लास अटेंड करें, सो दैट यू कैन एड्रेस योर डाउट्स। क्लियर? क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं, ये आप क्लास में नहीं पढ़ते। क्लियर? इसीलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। करेक्ट? ओके। नंदिनी, आर्टिकल 20, 22, 32। ओके, 20, आर्टिकल 20, 21। काफी सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, व्हेन वी से आर्टिकल 20, व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या लिखा हुआ है? ओके, स्पर्श आर्टिकल 22, ठीक है। ओके, कृषि 21। ओके, 21 क्यों तुम लोग लिख रहे हो? इट इज रिलेटेड टू दी राइट टू लाइव इन नेचुरल जस्टिस। डोंट इंक्लूड आर्टिकल 21। ओके, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ। स्पर्श डबल जियोपार्डी इज गिवन इन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। Clear? In Article 20, Subclause 1, no ex post facto criminal law is given. मतलब क्या है? Criminal law और liability cannot be applied retrospectively. है ना? मतलब it does not apply to procedural changes. Procedural changes में यह अप्लाई नहीं होता है। अब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? ये बात करता है डबल ज्योपार्डी के बारे, है ना? नाउ अब सवाल ये है, डबल ज्योपार्डी, मान लीजिए अगर कन्विक्ट ने ऑफेंस किया है ना, इफ कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, है ना, अगर कन्विक्ट किया गया है ऑफेंस के लिए, नाउ इट कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। अगर किसी इंसान को किसी चीज की सजा मिल चुकी है, सो दैट पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड। अब ये डबल जियोपार्डी कहां पर अप्लाई नहीं होता है? अगर मैं आपसे पूछूं डबल जियोपार्डी कहां पर अप्लाई नहीं होगा? इट डज नॉट अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज। ये याद रखिएगा। यस नंदिनी, वेरी गुड। डज नॉट काउंट डिपार्टमेंटल punishment. Very good. It does not apply to administrative inquiries. Clear? अब एक चीज याद रखिएगा, अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की, अगर हम बात करें, इफ इवन इफ acquitted for an offense cannot be tried again for the same offense, अगर इंसान को उसी ऑफेंस के लिए एक्विट किया गया था, कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। क्लियर? इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो। क्लियर? ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करके रखिएगा। अब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? व्हाट इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3? इट टॉक्स अबाउट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। वेरी गुड नंदनी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। टेल मी व्हाट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन? Person has to officially accused of an offense. Clear? Person has to officially accused of an offense and
इट कैन नॉट बी फोर्स टू बी अ विटनेस और गिव एविडेंस अगेंस्ट देमसेल्फ। उस इंसान, किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जा सकता टू बी अ विटनेस और गिव एविडेंस अगेंस्ट देमसेल्फ। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्लियर एवरीवन? तीनों क्लॉज समझ में आ गया आर्टिकल 20 के? यस उस्मा, एक्सेप्ट टेररिज्म। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? अब कनेक्ट करिए आर्टिकल 22 को। नाउ आर्टिकल 22। नाउ आर्टिकल 22 किस बारे में बात करता है? सबसे पहला अरेस्ट। अरेस्ट, अरेस्ट इज अवेलेबल फॉर ऑल, अवेलेबल फॉर ऑल। दूसरी चीज ये आर्टिकल कहता है राइट टू लीगल काउंसिल, राइट टू लीगल काउंसिल। देन किस चीज के लिए अरेस्ट किया जा रहा है? उस इंसान को इन्फॉर्म करना है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म, है ना? एंड दिस सेज दैट when the person is arrested, that person to be produced before the magistrate within 24 hours, produced before a magistrate within 24 hours। क्लियर? ये सारी चीजें दी हुई है। ट्रेवल टाइम एंड हॉलीडेज आर नॉट काउंटेड, ये याद रखिएगा, हॉलीडेज में काउंट नहीं किए जाएंगे, ट्रेवल टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना बेसिक समझ में आ गया? यस, एक्सेप्शन इज एनिमी एलियंस, है ना? नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दूसरी चीज जो आर्टिकल 22 में है, आर्टिकल 22 दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो सबसे पहले ये बताइए, प्रिवेंटिव डिटेंशन कम्स अंडर विच लिस्ट? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट? टेल मी, किस में आता है ये? ओके, नंदिनी कह रही है स्टेट, उस्मा कॉन्करेंट। अब एक चीज ये याद रखना, बहुत ट्रिकी चीज है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कम्स अंडर यूनियन एंड कॉन्करेंट। यस, यूएपीए। तो यूनियन एंड कॉन्करेंट बोथ। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस। क्लियर? एनिमी एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। राइट टू बी इन्फॉर्म is still there, right to be informed is there, okay? यहां पर no right to legal counsel, clear? But can challenge detention order, can challenge detention order, remember this thing, clear? Preventive detention क्या कहता है? Preventive detention laws cannot allow for more than 3 months of detention। 3 महीने से ज्यादा आप डिटेंशन नहीं कर सकते। इन केस अगर करना है सो एडवाइजरी बोर्ड एक बनेगा। अगर 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, एडवाइजरी बोर्ड इन विच हाई कोर्ट जजेस, एडवाइजरी बोर्ड कंप्राइजिंग हाई कोर्ट जजेस और इक्विवेलेंट and this advisory board must approve the detention। इनको अब करना है डिटेंशन को। क्लियर? ये याद रखिएगा, एडवाइजरी बोर्ड। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट आए, लाइक यूनियन लेकर आया यूएपीए। यूएपीए तो पुराना हो गया, नया एक्ट क्या है? पीएमएलए, प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये पूछा जा सकता है। क्लियर? क्योंकि लास्ट ईयर जब इलेक्शंस आ रहे थे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मिनिस्टर है, उन सभी को अरेस्ट किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। क्लियर? देन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्लियर? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब अगर हम यूएपीए एक्ट की बात करें, क्लियर? अभी मैं सभी के क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। तो अगर हम अभी यूएपीए की बात करें तो यूएपीए एक्ट में 4 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है, ये याद रखिए। यूएपीए एक्ट में 4 टाइम्स अमेंडमेंट, 4 मेजर अमेंडमेंट्स हो चुके हैं।
यूएपीए कब आया था? 1967 में। उसके बाद 4 मेजर अमेंडमेंट्स हुए। एक हुआ 2004 में, देन 2008, देन 2012 एंड देन 2009। तो जब हम यूएपीए एक्ट की बात करते हैं, UAPA Act can extend to the entire country and it can also apply to Indian citizens outside India. जो भी इंडियन सिटीजन है इंडिया के बाहर रह रहे हैं वहां उनके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। अब ये एक्ट कहता है स्टैब्लिश अ ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल बनाइए, क्लियर, ताकि वो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? टू एडजुडिकेट इफ एन एसोसिएशन शुड बी बैन, कि पर्टिकुलर एसोसिएशन को बैन करना है कि नहीं करना। Then UAPA Act also defines the Terrorist Act. ये टेररिस्ट एक्ट को भी डिफाइन करता है, क्लियर। तो इसीलिए कहा गया फॉर एग्जाम्पल वो सभी एक्ट जो इंडिया की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर डिफाइंड, सो दीज आर कंसीडर्ड एज टेररिस्ट। ओके, नाउ इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट, नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं की जाएंगी, इंडिविजुअल भी टेररिस्ट डिक्लेयर किए जा सकते हैं। UAPA Act also provide death penalty or life imprisonment for terrorist acts. UAPA में अगर अब बेल होती है कि नहीं होती बताइए? अंडर दिस UAPA Act बेल दी जाती है कि नहीं दी जाती है बताइए? नो, बेल नहीं दी जाती, नॉन बेलेबल। ओके, सी it can deny bail if prima facie evidence exists against the accused. ये याद रखिएगा, it can deny the bail if prima facie evidence exists against the accused. Remember this thing. And this UAPA Act, ये जो recent amendment आया था 2019 में, it allows electronic evidences also and intercepted communications as admissible evidence. Clear? These things are given in UAPA and this act was amended 4 times. याद रखिएगा, it allows electronic evidence, लिख लीजिएगा UAPA में, it allows electronic evidence and intercepted communications as admissible evidence. Okay, ये याद रखिएगा. So these are the things which are related to criminal justice.